Hello everyone. Hope all of you are doing well on this beautiful evening. I, Kanwaraj, is pleased to welcome each and every one of you for the third talk of Event Stack organized by RoboStan. Before we get started, let me throw some light on RoboStan. RoboStan is a growing community of those students who are eager to learn about latest robotics technology. In this pandemic situation, we decided to organize live talks on different topics which are related to robotics and as well as other fields. Our today's guest of honor is Mr. Siddhant. He completed his BTech degree in computer science in India. Currently studying for MS in cybersecurity at National College of Ireland, and also doing internship in cybersecurity in Ireland. He has been working in cybersecurity for almost 3 years, where he contributed in various fields like pen, testing, SOC, networking, and cyber consulting as well. He has also developed his own blog site, Breaking Goals, where he writes about topics issue in cybersecurity, and blogging channel Siddhant India Vlogs, where he helps students by giving knowledge about Ireland study and culture. Hello, sir. Hello. Yeah. Thanks for a huge introduction. You had done a great social engineering on me. So can I start my session now? Yeah. Okay. Okay, so our topic is cybersecurity and its significance. So let's start. First of all, I will tell you what is cybersecurity and give a brief introduction about it. So the cyber term is used to refer the security offered through online service or to protect your online information, and which increases with the amount of people increasing connecting to the internet, and the security threat is increasing with that. As we all know, अगर हमारे अगर surface area या फिर connections बढ़ेंगे internet पे, so with that attackers को एक huge amount मिल जाएगा जहाँ पे वो attack कर सकते हैं. So with that threats are also increasing. In this PPT I will let you know about the word cyber and why we need cyber security and what are the security problems in cyber field and how to implement and maintain that security. So first, what is the meaning of word cyber? It is a combining form relating to information technology, internet and virtual reality. And why we need cyber security? So cybersecurity is necessary because it helps us in securing our data from threats like different attackers and such as data thefts, misuse, also safeguarding your system from viruses. So what are the major security problems in the cyber field? So these are the 5 terms. So can anyone explain what is virus? Hello? Hello? कोई बताना चाहेगा वायरस के बारे में? I think no one. Guys, please, you have to interact. I'm not a teacher. तो मैं 1 घंटा ऐसे नहीं बोल सकता. You have to interact with me. Who is the host? Can you tell me what is the virus?
Okay, so virus are the normal softwares which contains malicious code in them और जो हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. एंड हैकर्स आर द पर्सन जो उस वायरस को यूज करके हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड मेलवेयर्स आर ऑल्सो malicious कोड जो हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करते हैं. These are different type of viruses and Trojan horse also and password cracking is used for cracking the password and इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डीप में. So virus is a program which is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes. तो ये बेसिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है, आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो, और आपको पता नहीं होता वो आपके सिस्टम में रन करता है और that harms your system. So what is the solution for that? We can install a security suite that protects the computer against threats such as viruses and worms. And ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं like you can see here Trend Micro, Kaspersky, Avast, जो एंटीवायरस होते हैं बेसिकली, जो आपके सिस्टम में बताते हैं कि these are the viruses और आप इसको कैसे हटा सकते हो. And hackers are the common in person who breaks into a computer usually by gaining access or to by administrative controls. So types of hackers होते हैं कुछ, like first is white hat hacker. White hat hacker क्या करता है? They have all the knowledge, they are ethical hackers. So आप उनको नॉलेज देते हो कि हमारा सिस्टम है ये, इसको आपको हैक करना है, तो ताकि हमें लूप होल्स पता चल सके हमारे सिस्टम में क्या क्या है. एंड ग्रे हेड हैकर होते हैं, दे हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज बट उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो दे ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज एंड दे ट्राई टू हैक योर सिस्टम. ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, दे आर नॉट एथिकल हैकर्स जो हमारे सिस्टम को हैक करने की उनका इंटेंशन होता है हार्म करना सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को. देन हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग. It may be impossible to prevent computer hacking. However, effective security controls, including strong password and use of firewalls, can help. Strong password हमारे सिस्टम में हमें रखने चाहिए and we should use firewall, a strong firewall. So now we have malwares. So word malware is a term which is taken from malicious and software. And malware is any software that infect and damages a computer system without the owner's knowledge or permission. And malwares के भी कुछ types होते हैं, like virus, trojan, rootkits, worms, spyware, crimeware, adware. ये different type of malwares होते हैं. So how to stop it? We have to use an anti-malware program that also helps prevent infections and activate network threats protection, firewalls, antiviruses. तो ये सब चीजें हमें अपने सिस्टम में यूज करनी चाहिए. Then we have Trojan horse. तो Trojan horse क्या होता है बेसिकली? If you go in ancient time, तो पहले जो किंग्स होते थे, उनके जो किंगडम्स होते थे, उसमें जो अटैक करने जाते थे लोग, दे यूज्ड टू यूज हॉर्सेस और वो हॉर्स के अंदर बैठ जाते थे, वुडन हॉर्स के, एंड वो किंगडम के अंदर जाके वो हॉर्स खुल जाता था और वो अटैक कर देते थे विदाउट द नॉलेज ऑफ किंग. तो ट्रोजन हॉर्स भी वैसे ही काम करता है. ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर एंड देन ये एक्सपेंड करता रहता है और आपके सिस्टम को हार्म करता है एज अ वायरस. So how to avoid Trojan? Again, we have to use security suits such as Avast Internet Security that will prevent you from downloading Trojan horses. तो वो आपको एक अलर्ट दे देंगे, this file is harm, you should not download it. Now, what is password cracking? Password attacks are attacks by hackers that are able to determine password or find password to different protected electronic area and social work sites. So, password cracking कोई बंदा तभी कर सकता है जब आपके पास आपका पासवर्ड वीक है. उनके पास एक सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ फाइल होती है जिसमें वीक पासवर्ड जो जो कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं वो होते हैं और वो उससे अटैक करते हैं और वो चेक करता है मैन्युअली कि आपका पासवर्ड मैच कर रहा है, तो वो आपके सिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं. तो यू शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई बताना चाहेगा कैसा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है? बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में
लाइक दैट कि अपन उसमें नंबर्स भी यूज करें एंड अल्फाबेट्स भी यूज करें, हम्म। मतलब जस्ट लाइक दैट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यूज करें। ओके, तो कोई एग्जांपल देना चाहोगे आप पासवर्ड का? लाइक कोई पासवर्ड बताओ, जैसा स्ट्रॉन्ग कुछ। या जस्ट लाइक दैट ए जैसे के ए 1 2 3 @ एंड फिर कोई वर्ड लाइक दैट ABC एंड अगेन हैशटैग एंड 1 2 3 एट अदर नंबर लाइक दैट। ओके, परफेक्ट। और जैसे मैं भी कुछ बताना चाहूंगा इसमें, जैसे 1 2 3 आप यूज मत करो, क्योंकि 1 2 3 वो सेट ऑफ रूल्स में होता है, उसके अलावा बाकी सही था। लाइक यू कैन यूज कोई भी जिसका कुछ मतलब ना बने। जैसे आपने Z यूज करा, देन U यूज करा, VE कैपिटल में, देन आपने लाइक 2 4 यूज कर लिया, फिर @ कर लिया, फिर आपने स्मॉल ई एंड देन हैशटैग यूज कर लिया। तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनेगा पासवर्ड का, एंड ये पासवर्ड हैक करना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेवर यूज सेम पासवर्ड फॉर 2 डिफरेंट साइट्स। क्योंकि अगर आपकी एक साइट कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर एक सोशल मीडिया कॉम्प्रोमाइज होता है, तो दे कैन इजीली गेट एक्सेस टू अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल। एंड साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप खुद को सिक्योर करोगे सारे, तभी आप अपनी कंट्री को या किसी भी चीज को सिक्योर कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को। सो इन दिस, इंडिया स्टैंड्स इन 10th इन साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड। ये हर हर ब्लॉग आर्टिकल्स के हिसाब से अलग अलग होता है, हर कोई अपना अपना डिफाइन करता है। बट हाँ, टॉप 10 में है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अटैक हो रहे हैं। तो यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ इंडिविजुअली, देन ओनली यू कैन सिक्योर योर कंट्री। So these are the 8 biggest cyber attacks जो हुए हैं. So like one cyber theft hacked the information of 24 million Amazon customers, 198 Androids owner, 1.5 million eHarmony passwords. तो अगर आप ये सारे देखोगे तो इसमें आपके पासवर्ड्स और अकाउंट ही हैक हुए हैं, जो उस वेबसाइट के या उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं। तो इसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हो? अगेन आपके पासवर्ड स्ट्रांग होंगे, तो इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ ऑर्गेनाइज़ेशन हैव टू सिक्योर दैट। एंड ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे सिक्योर कर सकती है अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइज़ेशन है तो? तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर सिस्टम बाय हैविंग एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन दैट। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? अगर आपके सिस्टम में एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, तो कोई भी आपका डेटाबेस हैक कर सकता है और वो आपके सारे कस्टमर के आईडी पासवर्ड ले सकता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में मैं आगे भी बताऊँगा आपको। अब ये पीपीटी है। अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बताऊँगा कि साइबर सिक्योरिटी में क्या-क्या डिफरेंट फ़ील्ड्स होती है, ताकि अगर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो यू शुड चूज़ योर फ़ील्ड ईज़िली बाय दिस। तो फर्स्ट फ़ील्ड होती है SOC, व्हिच इज़ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। This is a centralized function within an organization employ people, process and technology जो continually monitor करते हैं and improve करते हैं organization की security को by preventing, detecting and analyzing and responding to cyber security incident. So अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया दूं, तो वैसे ये प्रॉपरली ये नहीं होता है, इसमें अलग टूल होते हैं, बट मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया देने के लिए बताऊं,
Kaspersky का एक टूल होता है, उसका भी मेरे को लिंक मिल नहीं रहा है, which shows you about the attacks which are currently going on in our world. तो वो टूल होता है। एनीवेज, तो वो एक आपको आइडिया देने के लिए था एक, बट वैसे जो टूल्स यूज होते हैं सॉक में, दोज आर सिम टूल्स। ये एक Splunk ये एक Splunk है, ये सिम टूल है। सो ये इसका एक इंटरफेस है सिम टूल का। सो इन दिस वी हैव सेलेक्टेड फील्ड्स लाइक होस्ट, सोर्स टाइप, एंड ये आपको एक लॉग्स दे देता है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या-क्या लॉग्स चल रहे हैं। तो उस लॉग्स का टाइम, डेट, पूरी इन्फॉर्मेशन, कहाँ से वो लॉग आ रहा है, सोर्स क्या है, होस्ट क्या है और उसका टाइप क्या है डेटा का। और आप अपने यहाँ से सर्च बार से फ़िल्टर्स कर सकते हो उन लॉग्स को, और ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका यहाँ से कोई मैलिशियस लॉग है या फिर कोई एक्टिविटी हो रही है इस कंट्री से, स्पेसिफिकली इस आईपी से, तो आप उस आईपी को ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर आप उस कंट्री को ब्लॉक कर सकते हो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ के यूज़र्स नहीं हैं तो। एंड लाइक दिस वी हैव वन मोर टूल व्हिच इज़ मैकैफे। एंड मैकैफे टूल्स का इंटरफेस ऐसा होता है, तो इट शोज़ यू मीटर एंड इट शोज़, जैसे ये दिखा रहा है सक्सेसफुल ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, डिक्शनरी होती है एक पासवर्ड्स की, सेट ऑफ रूल्स की, जो अटैकर ट्राई करते हैं मैन्युअली, ऑटोमेटिकली होते हैं बट उसमें मैन्युअली वो चेक करते हैं पासवर्ड्स को, कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। देन इसमें ये आपको सिम टूल में बता रहा है कि सक्सेसफुली ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है आपके सिस्टम पे, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं उस आईपी को या रीजन को। देन वी हैव field called vulnerability assessment. So vulnerability assessment is a technique or of identifying and measuring security vulnerabilities in a given environment. And it is a comprehensive assessment of information security positions. Further, it identifies about the potential weakness and provides proper mitigation and remediation of that. So assessment have some steps as well, as you can see here. Vulnerability identification. So इसमें vulnerability identify करता है tool कि what are the vulnerabilities in your organization by analyzing it. फिर वो आपका risk assessment matrix बना के देता है, like what are the critical vulnerabilities, what are the high vulnerabilities and what are the low vulnerabilities. तो आप पहले अपनी critical vulnerabilities patch करते हो, then high और low को इतना patch नहीं करते, उसको बाद में भी कर सकते हैं. And it also gives you a remediation plan how to mitigate that vulnerability. सो ऐसा एक कुछ टूल होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट का, लाइक नेसस है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। तो इसने आपको बता दिया कि आपके सिस्टम में एक क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है, 6 हाई है, 1 मीडियम एंड 0 लो है। तो क्रिटिकल वर्नेबिलिटी इसने आपको नेम दे दिया क्या वर्नेबिलिटी है, एंड हाई है उसका सीवीएसएस स्कोर भी देता है ये। एंड ये एक पेज का स्क्रीनशॉट है खाली, वैसे ये अराउंड 200 से 250 पेजेस की रिपोर्ट होती है पूरी, which gives you the information about the vulnerability and how to mitigate it. Then we have a field called pen testing. This is a very interesting field. Pen testing क्या होता है? It replicates the action of an external and internal cyber attacks that is intended to break information security and hack the valuable data or disrupt the normal function of an organization. तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके सिस्टम में हैक करने की कोशिश करते हैं, और वो एथिकल हैकिंग होती है। एंड बाय हैकिंग योर सिस्टम वो आपके लूप होल्स बताते हैं एंड हाउ टू मिटिगेट इट। मिटिगेट करना काम पेन टेस्टर का नहीं होता, बट वो आपको वर्नेबिलिटीज बताते हैं कि क्या क्या है, उसको हैक करके एथिकली। सो आपको इसके बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। वर्नेबिलिटी स्कैनर एक बेसिकली टूल होता है जो आपको स्कैन करके देता है क्या क्या वर्नेबिलिटीज है, उसको कैसे मिटिगेट करना है। बट पेन टेस्टिंग होती है जो आपको पूरा हैक करके बताते हैं आपके सिस्टम को, और वो हैक कैसे करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा थोड़ा बहुत, कि हैकिंग क्या होती है और कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ी सी बस। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल कॉल्ड बर्ब सूट। इसमें क्या होता है, ये आपके जो आप वेबसाइट खोलोगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाती है, एंड उस वेबसाइट में क्या पैरामीटर्स है, क्या डेटा है, कौन सा होस्ट है, यूजर एजेंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। एंड उसको आप फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से, स्पाइडर, इंट्रूडर, रिपीटर, इन सब से। मैं ज़्यादा ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। देन वी हैव अ फील्ड कॉल्ड फोरेंसिक्स।
Computer forensics is an application which investigate and analyze the technique of gathering and preserving evidence from a particular computing device in a way is suitable for presenting in a court of law. तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारी कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है वैसे ये साइबर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर कोई अटैक होता है तो ये बैक ट्रैक करते हैं उसको और हेल्प करते हैं कि हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं, जो क्रिमिनल है उसको बैक ट्रैक करके उसके फुटप्रिंट्स गैदर करके। सो फोरेंसिक्स में मैंने इतना काम नहीं करा है, बट मैंने एक ये टूल यूज करा है एजस, बिकॉज फोरेंसिक्स मेरा पार्ट नहीं है। एजस टूल क्या होता है, अगर आप अपने सिस्टम से कोई भी डेटा डिलीट कर देते हो, so you cannot regather that data according to you guys। अगर आपने उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, अपने सिस्टम में से भी डिलीट कर दिया, बट ये टूल जो है इससे आप अपना सिस्टम का डिलीट करा हुआ डेटा वापस निकाल सकते हो। लाइक आपने अगर आपके सिस्टम से भी डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, तब भी इस टूल से वो वापस निकल जाएगा क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर रहता है। तो इसलिए जब आप अपना सिस्टम सेल करते हो या कुछ करते हो तो यू शुड नॉट सेल योर सिस्टम और योर डिवाइस बाय बिना प्रॉपर उसको डिलीट करे। तो आपको वो उसको अपने सिस्टम को वापस कुछ भी डेटा डंप करना है उसमें, कुछ भी इलॉजिकल डेटा, एंड फिर उसको वापस डिलीट करना है एंड फिर डेटा डंप करना है एंड फिर डिलीट करना है। ऐसे 2-3 बार आपको करना है, तब जाके वो आपको पहले वाला डेटा पूरा इरेज़ होता है। Then we have a field called IT security consultant. So IT security consultant access your software, computer systems, and network for vulnerabilities, then design and implement the best security solution that organization needs. And they also play a very high role of both the attacker and victim, and are asked to locate the potential exploit vulnerabilities. सो जो आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट्स होती है उसको रीड करते हैं आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, एंड वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि हम कैसे सिक्योर रह सकते हैं बाय रीडिंग योर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदों को वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स पढ़नी नहीं आती। एंड दे आल्सो गाइड फॉर पेन टेस्टिंग एज वेल। Then we have malware analysis. So malware analysis is a study or process of determining the functionality, origin and potential impact of given malware। सैंपल सच एज़ वायरस हो गया, आपका वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रूटकिट हो गया एंड बैकडोर हो गया। एंड मैलवेयर हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में? सो इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें मैंने काम्स करा है। तो ये टॉप 3 टूल्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फर्स्ट इज़ एचएक्सडी। तो ये क्या करता है, आपकी हेक्स कोड जो होते हैं फाइल्स के अंदर उसको रीड करता है और फिर आपको एक रिजल्ट देता है। देन वी हैव वायरस टोटल। वायरस टोटल मैं आपको दिखा भी देता हूँ टूल। ये वायरस टोटल टूल होता है, अगर आप वेबसाइट पे, अब अगर आप गूगल पे लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा ये। देन यू कैन अपलोड योर फाइल हेयर, तो आपकी वो बता देगा कि उसमें कितनी मैलिशियस है फाइल। और या फिर आप वेबसाइट का कोई यूआरएल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट लेता हूँ, क्लाउडफ्लेयर। तो इसने एनालाइज करके पूरा बता दिया कि इसमें ज़ीरो है, और ये आपको पूरे लिंक्स भी देता है कि वो क्लीन है, नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है, ये एक फ़ाइल पे मैंने इसमें 57 इसने दिखाया है। ये बहुत ही रेयर होता है कि 50 से ऊपर ही आपको दिखाए। बहुत ही मैलिशियस फ़ाइल होती है वो 50 से ऊपर जाती है। एंड देन वी हैव अ टूल कॉल्ड EXE-info, जो ये आपकी EXE फाइल्स होती है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है आपकी मैलवेयर है उसमें कि नहीं है। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। A network security administrator is an individual that manage, monitor and administrate security over one or more computer networks। क्योंकि जो नेटवर्क होता है वो दैट इज अ मेन पार्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी से भी कम्युनिकेट करना है, सो यू शुड हैव अ गुड एंड स्ट्रांग नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क से अगर आप कुछ सेंड करते हो तो बीच में कोई मैन इन मिडल अटैक करके आपका नेटवर्क की डेटा को गैदर कर सकता है। So network security administrator primarily ensure that a network is secured from internal or external security threats and incidents। और सम ये कुछ टास्क है जो नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर करता है, लाइक डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज ए फुल प्रूफ नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, implement and configure security software tools such as antivirus, firewall, intruder detection, and more. And it also identify known and unknown network vulnerabilities and ways to counteract them। So
ये एक टूल है जो वायरशार्क, ये एक पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये टूल क्या करता है, जो आपके पैकेट्स आप सेंड करते हो अपने नेटवर्क्स में, उनको कैप्चर करता है। आप कोई भी ये कर सकते हो, अगर आप, मैं गाइड तो नहीं करूँगा बट हाँ, बता देता हूँ। जैसे आप कॉलेज में हो, आपका वाई-फाई है, तो आप अपने हॉस्टल में अगर आप ये टूल यूज़ करते हो, तो आपको उस वाई-फाई से जितने भी रिक्वेस्ट जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो आप वो देख सकते हो कि क्या रिक्वेस्ट है। आप यहाँ पे उस रिक्वेस्ट का टाइम देख सकते हो, सोर्स देख सकते हो कौन-सी आईपी से आ रहा है, तो अगर आपको अपने दोस्त की आईपी पता है, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा चला रहा है। डेस्टिनेशन क्या है, वो क्या चला रहा है, पोर्ट कौन-सा यूज़ कर रहा है, होस्ट क्या है उसका। और अगर आप इस पैकेट पे क्लिक करते हो, तो अगर वो बंदा एचटीटीपी पे अगर अपना लॉगिन कर रहा है, तो आप उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी देख सकते हो, ये पैकेट पे क्लिक करके बस। आपको उसको प्लेन टेक्स्ट में दिख जाएगा उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर वो एचटीटीपीएस यूज़ कर रहा है, तो आपको वो एन्क्रिप्टेड दिखेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड पर दिखेगा, तो आप उसको कहीं डिक्रिप्ट करके देख सकते हो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव अ फील्ड कॉल्ड क्रिप्ट एनालिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। क्रिप्ट एनालिस्ट क्या करता है, डिसाइफर करता है जो सीक्रेट कोड्स होते हैं, और राइट करता है कोड्स जो हैकर क्रैक ना कर सके इजीली। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय सुपरवाइजिंग द ऑनलाइन सिक्योरिटी ऑफ डेटा सिस्टम। एंड ये डिकोड करते हैं सीक्रेट मैसेजेस को, एनकोडिंग करते हैं सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज एंड मिलिट्री। तो क्रिप्ट से बहुत सारे वर्ड होते हैं, लाइक आप ये इमेज में देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये आपका साइफर टेक्स्ट होता है जो हिडन राइटिंग आपका एनक्रिप्ट करने के बाद आती है। क्रिप्ट एनालिसिस होता है ब्रेकिंग ऑफ सिक्योर मैसेजेस, क्रिप्ट एनालिसिस सॉरी। एंड क्रिप्ट एनालिस्ट होता है, ये स्टडी करता है एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड मैसेज विद द गोल ऑफ फाइंडिंग द हिडन मैसेज। और क्रिप्टोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन होता है बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिस्ट का। ये क्रिप्ट एनालिस्ट आपको हेल्प करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड सिक्योर करने में, ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम्स एंड ऑनलाइन सिस्टम बाय एन्क्रिप्टिंग दोज़ इन्फॉर्मेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ये सबसे हाई प्रायोरिटी का अटैक है, ओवेस्प टॉप 10 एक होता है उसमें भी। सो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है, it's an attack which happen when untrusted data is sent to a code interpreted through a form input or some other data submission to a web application. Like for example, एक attacker है that could enter SQL database code into a form that expect a plain text username. If that form inputs in not properly secured, this would result in SQL code being executed. So like आपका एक इनपुट फील्ड है कहीं पे, एंड वहाँ पे कुछ एसक्यूएल चीट कोड्स होते हैं अलग-अलग। वो अगर चीट कोड्स अटैकर ने डाल दिए और वो एग्ज़ीक्यूट हो गए, तो वो चीट कोड से आपका डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो, आपके लॉगिन कर सकता है एज़ एन एडमिन। ये मैंने बहुत वेबसाइट पे करा भी है और हो जाता है बहुत ईज़िली। अगर आप एसक्यूएल चीट कोड्स डालते हो एज़ अ एडमिन, आपको एक्सेस मिल जाता है और फिर आप उस वेबसाइट पे कुछ भी कर सकते हो। सो इंजेक्शन अटैक कैन बी प्रिवेंटिंग, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ वैलिडेशन करके, जैसे आपकी इनपुट फील्ड है वहाँ पे आपने वैलिडेशन कर दिया कि ये आप मैलिशियस कोड यहाँ पे नहीं डाल सकते। कुछ-कुछ चीज़ें ये आपने अलाउ करी। और सैनिटाइजिंग मीन्स अगर उसने कुछ यूज़र ने इन्फॉर्मेशन डाली है और आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आप उसको चेंज करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। मैलिशियस लाइक ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप स्क्रिप्ट टैग में यूज़ कर सकते हो। तो उसकी जगह आप उसको डॉट में कन्वर्ट कर दोगे जब आप डेटाबेस में सिक्योर कर रहे हो तो। उसको हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। एंड वी हैव सम टूल्स फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन एज़ वेल। एसक्यूएल इंजेक्शन भी बहुत तरीके की होती है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो ये एसक्यूएल मैप एक टूल होता है। तो एसक्यूएल मैप टूल आपके काली लिनक्स में होता है। मैं सोच रहा था आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँगा, बट आई थिंक इतना टाइम नहीं है अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखा पाऊँ। तो एसक्यूएल मैप टूल में आप अपनी एसक्यूएल मैप डालते हो एंड फिर लिंक डालते हो जो वेबसाइट आपको करनी है, और फिर आप उसका डेटाबेस आपका पूरा निकल के आ जाता है, और फिर आप उसकी टेबल्स में जा सकते हो। उस टेबल्स में क्या डेटा स्टोर है वो देख सकते हो, उसमें क्या आईडी पासवर्ड स्टोर है वो देख सकते हो। देन वी हैव अ अटैक कॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।
So when vulnerability occurs when web application allow user to add custom code into their URL path or onto a website that will be seen by other users. This vulnerability can be exploited to run malicious JavaScript code onto a victim's browser. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आप यूआरएल में अगर कोई उसको रीडायरेक्ट कर पा रहे हो उस जावास्क्रिप्ट कोड डाल के, तो उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। या फिर आप कोई भी इनपुट फील्ड में अगर स्क्रिप्ट टैग डाल के कुछ आप पॉपअप ले पा रहे हो, या फिर मतलब कुछ और यूजर को दिखा पा रहे हो जो उसको उस वेबसाइट के अलावा, so that is a cross-site scripting vulnerability. For example, attacker could send an email to a victim that appears to be from a trusted bank with a link to that bank website. This link could have some malicious JavaScript code tagged onto the end of URL. If the bank side is properly not protected against the cross-site scripting, then that malicious code will be run in a victim's web browser when they click on the link. So next we have email spoofing. ईमेल स्पूफिंग बहुत ईज़ी होता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ईज़िली। सो ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? इट्स अ फैब्रिकेशन ऑफ ईमेल headed hops or dumping of recipient into thinking the email originated from someone or somewhere other than the intended source. So like आप अपने किसी कोई हेड है या फिर लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, डीआरडीओ की तरफ से मैं आपको मेल भेज रहा हूँ। तो वो अगर उनके पास वो उनके में अगर ये वल्नरेबिलिटी है ईमेल स्पूफिंग की, तो मैं वो डीआरडीओ की तरफ से आपको मेल भेज सकता हूँ और वो आपको लगेगा लेजिटिमेट डीआरडीओ की तरफ से ही आया है, उन्हीं की मेल आईडी से। ये बहुत जगह होता है जहाँ पे आपकी खुद के होस्ट होता है ईमेल का, तो ये आप नॉर्मली सेंड कर सकते हो इस वेबसाइट से। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे आप अपना नेम डालोगे, किस ईमेल से आपको भेजना है वो डालोगे एंड आप सब्जेक्ट डालोगे, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो और वो यहाँ से सेंड हो जाएगा, जिसको आप वो मेल भेजना चाहते हो। और उस बंदे को ऐसा ही लगेगा कि ये लेजिटिमेट वहीं से ही आया है, जहाँ से जो मेल आईडी से आपने भेजा है। इसको भी पता लगाने की अलग-अलग टेक्निक्स होती है, लाइक यू कैन होवर ऑन अ लिंक और वो लिंक आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है, जो लिंक आपको दिया हुआ है उसके अलावा। तो लाइक वो ईमेल स्पूफिंग है, वहाँ पे वो मैलिशियस ईमेल है। देन वी हैव अ वल्नरेबिलिटी कॉल्ड क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है? इट्स लाइक आपकी कोई वेबसाइट है, यू कैन पुट अ आई फ्रेम ऑन दैट। आप ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगा दोगे जो लेजिटिमेट वेबसाइट है उसके ऊपर, और आपको लगेगा कि आप उसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, बट उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होगी जिससे आप कुछ भी बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर मैलिशियस फाइल डाउनलोड हो सकती है। लाइक आप कुछ सॉन्ग्स की वेबसाइट खोलते हो डाउनलोड करने की, तो वहाँ पे आपके पास पॉपअप्स आते रहते हैं बहुत सारे जो मैलिशियस होते हैं। अगर आप उन पे क्लिक कर देते हो तो वो आपके सिस्टम में कुछ डाउनलोड कर देते हैं मैलिशियस कोड्स, जिससे उनको आपका पूरा एक्सेस मिल जाता है। तो ये क्लिक जैकिंग होती है। देन वी हैव अ वेरी ईज़ी अटैक कॉल्ड डॉस अटैक। ईज़ी तो नहीं होता बट हाँ, डॉस ईज़ी होता है, डीडॉस मुश्किल होता है। डॉस इज़ डिनायल ऑफ सर्विस एंड डीडॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। So when you are sending a lot of requests to a server from a single system, so it is called DOS attack. बट अगर आप बहुत सारे सिस्टम से एक ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर सर्वर पे अटैक कर रहे हो बहुत सारी रिक्वेस्ट से, देन इट इज कॉल्ड डीडॉस। तो इससे यू कैन डाउन द सर्वर ऑफ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर आपने फेसबुक या फिर फ्लिपकार्ट इनका अगर सर्वर डाउन कर दिया फॉर 5 मिनट्स, तो उनका बहुत मिलियंस का लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब मुश्किल अटैक होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उसको रोक सके। तो इसकी मिटिगेशन क्या होती है? एक क्लाउडफ्लेयर कंपनी है, सो व्हाट दे डू, दे मेक देयर ओन सर्वर। वो बीच में एक लेयर लगा देते हैं कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उनके सर्वर के थ्रू जाएगी पहले, और वो सर्वर फ़िल्टर करेगा रिक्वेस्ट को, कोई लेजिटिमेट रिक्वेस्ट होगी, वही फिर वो आपके कैरी फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर पे, वरना वो बहुत सारी अगर मैलिशियस रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको वहीं पे रोक देगा।
So I think I completed my PPT on time. This is my Instagram handle. आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो. Thank you. Sir, and Hi. also if anybody have any doubt, you can type out in chat box and also unmute yourself and ask.